पंजाबी खबरनामा देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सीएम भगवंत मान ने होमी भापा कैंसर के IPD का किया उद्घाटन, कहा पंजाब च खोले जाणगे 16 मैडिकल कालेज। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਜੋੜ ਤੋੜ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਕ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ BJP, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਲਰਟ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, भाजपा नाल जान का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। हमारी अलायंस BSP के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। असी पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, वो सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसीलिए मीटिंग। ये मीडिया की बातें हैं, सारी मीडिया की ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। BJP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਾਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ मजीठिया साहब BJP से विजय रूपानी जो इंचार्ज है वो भी बोलकर गए हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। मतलब ये स्पेकुलेशन अगर है तो ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ नहीं होगी। मजीठिया जी, पंजाब में मुख्तार अंसारी की जमीन को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है सर, इस पर आपका क्या पक्ष है सर, क्या कहना चाहेंगे? भगवंत मान ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ 'ਚ ਹੋਮੀ ਭਾਪਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ IPD ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ MBBS ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कि हम लोग एक इकट्ठे होकर काम करने की एक योजना बना रहे हैं, एक ऐसी बीमारी के साथ लड़ने की जिसका गांव में डॉक्टर साहब नाम भी नहीं लेते। लोग इतना खतरनाक माना जाता है कि उसका नाम अपनी ज़ुबान से नहीं लेते। ये कह दिया जाता है कि वो बीमारी हो गई जिसका नाम नहीं लेना। कभी टीबी के बारे में ये कहा जाता था, उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है। अब कैंसर के बारे में ये कहा जाता है। और ख़ास तौर पे मालवा बेल्ट में, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। हेपेटाइटिस सी से लेके बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो अपने टेस्ट नहीं करवाते। वो इसीलिए डर के टेस्ट नहीं करवाते कि अगर डायग्नोज हो गया कुछ फिर कहाँ जाएंगे, फिर उनको चिंता लगेगी क्या होगा, मुझे ये है। तो ये स्टिग्मा जो है वो तोड़ना है। उसके लिए टाटा का नाम जब भी किसी भी फील्ड में आता है, चाहे इंडस्ट्री में आ जाए, चाहे वो एयरलाइन में आ जाए, चाहे वो मेडिकल साइंसेज में आ जाए, तो टाटा के साथ, बिजनेस के साथ साथ टाटा के साथ देशभक्ति भी जुड़ती है कि ये टाटा वाले लोग हैं, ये कर लेंगे। हर एक को यकीन है कि इनके पास आ गया तो कुछ भी कर लेंगे ये, क्योंकि उनके पास टीम इतनी डेडिकेटेड है और टीम वर्क है, सारा टीम वर्क है। तो जब संगरूर में 2015 में होमी बाबा सेंटर आया था, तब मैं MP था संगरूर से। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से बहुत से कैंसर के पेशेंट को हम रिकमेंड करते थे वहाँ। तो वहाँ पे अभी 125 बेडेड हो गया संगरूर, और वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। छोटा सा शहर है, जैसा कि डॉक्टर शीश ने बताया, रूरल एरिया है। और बहुत से लोग वहाँ पे आके ठीक होके चले गए, बहुत से हर रोज़ आते हैं। और संगरूर जो है वो मालवा का काफ़ी एरिया कवर कर लेता है, बठिंडा, गंगानगर तक, और अबोहर, इधर से फिरोजपुर, बरनाला, मलेरकोटला, इधर तक संगरूर जो है, मानसा, सिरसा, ये एरिया कवर करता है। तो जैसा कि बोला गया है कि हमने कैंसर ट्रेन को सिर्फ रोका ही नहीं, उसमें कैंसर के पेशेंट पहले बीकानेर जाते थे, वो गाड़ी बठिंडा से बीकानेर जाती है, तो उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलने लग गए थे लोग। तो उसको सिर्फ रोका ही नहीं, उसमें से पेशेंट को उतार के उनकी ट्रीटमेंट यहीं पर पंजाब में शुरू कर दी है। एक और हमारा आइडिया था, जब मीटिंग में डॉक्टर साहब खुद आप भी आए थे, कि हम मोबाइल लेबॉर्ट्रीज लेके जाना चाहते हैं गांव में। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर तक भी नहीं आ पाते, तो हम वहाँ जाके उनका ब्लड टेस्ट करें, मेमोग्राफी या वट जो भी उस मोबाइल वैन में हो सकता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कहते हैं कि जी हम इसको स्पॉन्सर करेंगे, आप बनवा लीजिए, कितने की वैन बनेगी। पंजाब में हम 5-10 जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो उसमें हेल्थ चेक सेंटर उसको बना लेंगे, हेल्थ चेक सेंटर ऑन व्हील्स, लाइक कुछ थोड़ा पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ मैंने ये चेक किया था, टेस्ट किया। मैं गंगानगर से एक BD अग्रवाल की कैंसर संस्था है, उनके पास एक बस थी जो कैंसर डिटेक्शन की और ब्लड टेस्टिंग की रिपोर्ट करते थे, वो हम ले आए उनसे। हमने गांव में, बड़े बड़े गांव में जाके बस वहाँ पे रोक दी। गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दी कि फ्री टेस्ट होंगे, आ जाओ, आपको कैंसर है, आपको कुछ भी है, हेपेटाइटिस सी है, सब आपके फ्री टेस्ट हुए। तो मैं उस गांव में जब बस चलेगी सुबह, मैं 10 बजे के आसपास गया कि अब गांव में जो लोग हैं वो आ गए होंगे और फ़ायदा ले रहे होंगे, मैं मिलता हूँ। तो बिल्कुल खाली खड़ी थी वैन। मैंने कहा भी क्यों नहीं आया कोई? कहते जी कोई भी नहीं आया। मैंने कहा भी ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, कहते जी 3 बार अनाउंसमेंट भी करवा दी गुरुद्वारा साहब में। मैंने कहा अनाउंसमेंट का कंटेंट क्या था? कहते जी हमने कहा था कैंसर चेक करने की बैन आई है। मैंने कहा फिर नहीं आएंगे।
फिर नहीं आएंगे, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर डायग्नोज हो गया तो हमने अगले गांव में जाके ये कहा डॉक्टर साहब कि आपका शरीर चेक करना है, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई हम वहीं पे दवाई देंगे, आइए। पूरा गांव आ गया। फिर इस काम के लिए हम कभी भी फंडिंग में कभी हम कोई जो है हाथ तंग नहीं रहता हमारा गवर्नमेंट का देने के लिए। हमने 42 करोड़ रुपया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ संगरूर का जो हमने दिया है, नई मशीन्स आई हैं, और 2 करोड़ रुपया एनुअली हम संगरूर वाले कैंपस को वो अलग से है मेडिसिन और अदर स्पोर्ट के लिए, वो भी करते हैं। और बाकी सब पेट सिटी, SPECT, स्कैन, इनके लिए हमने 34 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली अलग से हम उसको रखा। मेडिकल, क्योंकि हमारे मंत्री साहब खुद डॉक्टर हैं, तो जो इनकी रिकमेंडेशन होती है, लेटेस्ट मशीनें आती हैं, हर रोज साइंस अपने आप को चेंज करती है, साइंस अपने आप को अपडेट करती है, तो मेडिकल साइंस अपने आप को अपडेट करती है। हो सकता है आज जो मशीन हमें मिल रही है 1 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाए, तो हमें वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है रखनी है, उसके लिए हम रेडी हैं। CSR से लाएं, कहीं से भी लाएं, लेकिन लोगों की हेल्थ के लिए हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस मामले में। हमारी तरफ से आपको भी कोई यहाँ पर आप इसको, क्योंकि इसका नाम ही मेडिसिटी है, तो आप इसको बढ़ाना चाहते हो, इसको कोई और कुछ यहाँ पे हमारे बच्चे सीखने के लिए, या लेबॉर्ट्री चाहिए आपको, कोई और टेक्नीशियंस चाहिए, या आपको टेक्निकल कोई सेंटर चाहिए, हम आपके लिए बिल्कुल रहेंगे, हम इकट्ठे करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर बड़वे जी ने कहा है कि मतलब हमको मिलके ये ना हो कि सरकार कुछ और कह रही है, जो इंस्टीट्यूट है वो कुछ और कह रहा है, फिर नहीं बनेगी बात। तो टीम है, और टीम वर्क जो है वो आज की दुनिया में तो टीम वर्क ही चलता है। हम टीम ही बोलते हैं सबको कि ये गोदरेज की टीम है, ये गूगल की टीम है, ये टाटा की टीम है, टीम है। तो जब टीम का आई कांटेक्ट आपस में सही रहे, जब टीम की पासिंग एक दूसरे को सही रहे, तो किसी भी गोल को अचीव किया जा सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो मेडिकल साइंस का हो। तो 16 मेडिकल कॉलेज हमारे हमने प्लान करके हैं, जिसमें मेरे अफसर बैठे हैं। 3 का काम चल रहा है, होशियारपुर, कपूरथला, मलेरकोटला। संगरूर वाला का थोड़ा ज़मीन का कोई डिस्प्यूट था, वो अभी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। 16 मेडिकल कॉलेज हम बनाना चाहते हैं, और ये इसको मेडिकल हब कह लो, मेडिकल टूरिज्म के लिए। बहुत से NRI जो हैं वो यहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन वो साउथ इंडिया में ज़्यादा जाते हैं, हैदराबाद या चेन्नई वगैरह। तो यहाँ पे हम उनको अगर उनका इलाज कर सके तो घर पे होगा इलाज, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त मित्र यहीं पे हैं। तो दूसरा मेरे पास ये आइडिया तब आया था जब यूक्रेन से 350 बच्चों को हमको लाना पड़ा निकाल के, जान का खतरा हो गया था। 350 सिर्फ पंजाब के थे। तो मैंने कहा जी आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो, जो कंट्री अभी 25 साल पहले आज़ाद हुआ है, हम 75 साल के हुए। तो कहते जी यहाँ पे महंगा है, वहाँ जो काम मतलब 1.5 करोड़ में हो रहा है, यहाँ 25 करोड़ में हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हमारे बच्चे यहीं MBBS करें, सर्विस जहाँ मर्जी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी हम कंडीशन नहीं लगाने वाले, लेकिन यहाँ से पढ़े और दुनिया में जब सर्टिफिकेट दिखाएं कहाँ से MBBS है, पंजाब से। पंजाब मीन्स क्वालिटी, पंजाब मीन्स खालस, शुद्ध, रियल। तो पंजाब हाँ हमेशा लीड करता रहा है देश को, चाहे वो आज़ादी का संग्राम हो, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, कोई भी नया आइडिया आए तो पंजाब सबसे पहले अडॉप्ट करता है।